الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. 4 مقابلے کمپلیٹ ہوئے، 4 ٹیمیں آگے پہنچ گئیں. اب ایک بار پھر ہمیں 5ویں ٹیم کی تلاش ہے. 2 ٹیمیں ہمارے درمیان ہوں گی اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. دنیا میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ سلسلے کے آخر تک رہیے. علم دین سے متعلق بہت پیارے سوالات ہوں گے. اگر آپ اپنے ساتھ کاپی پینسل یا کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائیں گے تو بہت ساری چیزیں نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے ناظرین ایسے ہیں جو پورا سلسلہ ہمارا لکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ان میں سے فائنل میں ہم بتائیں گے کہ کتنے سوال و جواب کس نے لکھے ہیں. ناظرین، روزانہ آپ سے بھی گھر بیٹھے ہم ذہنی آزمائش کرتے ہیں. اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم ایک سوال آپ سے ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن کے ذریعے آن لائن کرتے ہیں. آپ نے اگر اب تک ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور ایک بڑی پیاری خوشخبری میں آپ کو بتاؤں، کل رات کو میں دیکھ رہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئز اپلیکیشن یعنی اسلامک کوئز اپلیکیشن جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں پہلے نمبر پر آئی ہو. الحمدللہ گیمز کی جو پلے اسٹور پر کیٹیگری ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر کل رات الحمدللہ میں نے دیکھا کہ ذہنی آزمائش یہ نمبر 1 ٹرینڈنگ کر رہا ہے. تو یہ سب آپ کا پیار ہے اور علم دین دعوت اسلامی کس طرح پھیلا رہی ہے جدید تقاضوں کے ساتھ. تو آپ بھی اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ملائیں، ساتھ دیں، خود بھی یہ سلسلہ دیکھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، خود بھی اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے. اس میں آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ گھر بیٹھے نمبر حاصل کر رہے ہوں گے. ایک سوال تو ہم روز کرتے ہیں لیکن اس میں بہت سارے سوال ہیں، سیگمنٹس ہیں. آپ اپنا بھی ذرا امتحان لیں کہ مجھے کتنا علم دین حاصل ہے. تو آج بھی آپ سے ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن پر تھوڑی دیر میں سوال کرنے جا رہے ہیں، مگر وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کو منچ پر بلانے کا. آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ فیصل آباد اور پہاڑی علاقے سے آئے ہوئے ایبٹ آباد کے اسلامی بھائی ہیں. آئیے ان کو بلاتے ہیں اور پھر سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی تشریف لائیے. آگے بڑھتے رہو، یہ تو تھی ابتدا. ماشاءاللہ دونوں ٹیمیں تشریف لا چکی ہیں. ناظرین، وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا. توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ آئیے تلاوت قرآن مجید میں شامل ہو جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. जामिअतुल मदीना के तालिब इल्म रोज़ाना हमारे सिलसिले में आकर बरकतें लुटाते हैं, तिलावत कुरान हमें सुनाते हैं. अल्लाह करीम बेहतरीन अंदाज में हमें कुरान पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना नसीब फरमाए. नाज़रीन, आइए दोनों तरफ की टीमों से तारुफ हासिल करते हैं. फैसलाबाद के इस्लामी भाई हमारे साथ हैं. बताइए क्या करते हैं, क्या नाम है, मसरूफियात क्या हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मोहम्मद अली रज़ा तारी नाम है और मैं BScs यूनिवर्सिटी ऑफ GCC किया मैंने. अच्छा. और इसके अलावा दरस निज़ामी प्राइवेट राबिया दर्जे में पढ़ रहा हूँ. इसके अलावा हुज़ूर दाऊद इस्लामी की मदनी काफ़िले की तंजीमी जिम्मेदारी भी डिवीज़न सतह पे. अरे वाह भाई. और हुज़ूर वालदा ने दुआओं के लिए कहा था, बीमार है शिफा के. अल्लाह पाक आपकी वालदा को शिफा अता फरमाए. एक इस्लामी भाई और तीन तीन काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको बरकतें अता फरमाए. अगले इस्लामी भाई की तरफ चलेंगे जी. मोहम्मद एहसान अत्तारी जामिअतुल मदीना कुबा मस्जिद फैसलाबाद जड्डे खामी साहब. 5वें दर्जे के जामिअतुल मदीना के तालिब इल्म हैं. तीसरे इस्लामी भाई. मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है. मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल की है. चलें जनाब, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इस्लामी भाई भी आ गए हैं. तो जनाब खूबसूरत मिक्सचर है फैसलाबाद की टीम में. दुनियावी तालीम वाले भी हैं, दरस निज़ामी वाले भी हैं. फैसलाबाद हमेशा एक बहुत शानदार टीम हमें देता है और मुकाबले फैसलाबाद की टीम पहले भी ज़हनी आजमाइश जीत चुकी है. लास्ट टाइम भी नाजरीन को याद होगा कि फैसलाबाद ही के अंदर सेमीफाइनल हुआ था और वहाँ फैसलाबाद की टीम बिल्कुल लास्ट में पीछे रही थी. तो हमेशा आगे जाने वाली टीम फैसलाबाद की होती है. इस बार देखना है टीम कैसी आई है, सिलेक्शन कैसी हुई. आइए लिए चलते हैं आपको फैसलाबाद, वहाँ ऑडिशन हुआ. आइए उसके कुछ मनाजिर दिखाते हैं. The knowledge is light, the knowledge is light. सीजन 12 ज़हनी आजमाइश बारी है आज फैसलाबाद की. सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है. अक्ल जो इसके साथ है, अक्ल वही फतीन है. रुख दिन है या महरे समा, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं. शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं. खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं. उसूल इल्म दीन से हो मुश्किलात भी सहल, वहाँ से रिस्क हो अता, गुमान पहुँचे जिस महल. 4 खुलफा हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, मौला अली. हजरत अबू बकर सिद्दीक का कोई एक लकब जो बड़ा मशहूर हो वो बताएं. हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो लक़ब मशहूर है वो सिद्दीक है और अतीक. ठीक है. हजरत अबू उमामा बाहिली से कितनी हदीसें मरवी? 250 हदीसें. खादिमुन नबी किस सहाबी का नाम? हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला. उसूल इल्म दीन से हो मुश्किलात भी सहल, वहाँ से रिस्क हो अता, गुमान पहुँचे जिस महल. जीत या हार मकसद नहीं है तेरा, आगे बढ़ते रहो, ये तो थी इब्तिदा. अल इल्मु नूर
जनाब फैसलाबाद की टीम कैसे सेलेक्ट हुई आपने देखा। आप चलते हैं एबटाबाद के इस्लामी भाइयों की तरफ, नाम बताएंगे, मसरूफियात बताएंगे और फिर हम इंशाल्लाह इनके ऑडिशन को भी देखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम मेरा बिलाल अहमद अत्तारी है, एबटाबाद से रहने वाला हूँ। जी। जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना हरीपुर में दर्जा खामसा में इल्म हासिल कर। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़हूर हुसैन शाह नाम है, शिनक्यारी से ताल्लुक़ है, मानसरा ज़िला है, एबटाबाद की टीम से हाज़िर हुआ हूँ। माशाल्लाह, शंकियारी से ताल्लुक है। पहले भी आप आ चुके हैं, कौन से ज़हनी आजमाइश के सीजन में आए थे? सीज़न 10 में हाज़िर हुई थी। आए थे माशाल्लाह। चले जनाब, शंकियारी के इस्लाम में भी आए हैं, इनसे जुड़ी एक दास्तान भी है और किसी मौके पे आपको सुनाएंगे इंशाल्लाह। जी तीसरे इस्लामी भाई अली इमरान अतारी जामिअतुल मदीना सबसपुर हरीपुर दर्जा खामिसा। चलें जनाब, जामिअतुल मदीना के तलबा हैं, शंकियारी एक छोटा सा टाउन है, वहाँ के इस्लामी भाई भी हैं। एबटाबाद की टीम कैसे सेलेक्ट हुई, उस ऑडिशन के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हैं एबटाबाद में, पाकिस्तान का एक पुरफजा शहर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कसीर तादाद में आशिकाने रसूल तशरीफ लाए हैं। सुनो इबादतों में सबसे आला इल्म दीन है, अक्ल जो इसके साथ है अक्ल वही फतीन है, अक्ल जो इसके साथ है अक्ल वही फतीन है। कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा किसके सुपुर्द है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद अपने सुपुर्द। हौज़े कौसर कितना बड़ा है? हौज़े कौसर की मसाफत 1 माह की राह है। नए सवाल है, नए नए जवाब इस दफा, नए सवाल है, नए नए जवाब इस दफा, नई बहार तालिबो चलो कमर को बांध लो, नई बहार तालिबो चलो कमर को बांध लो। नेमतें बांटता सुनाए, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। मक्ता आता है आखिरी शेर। मक्ता जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीने चले, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जीत या हार मकसद नहीं है तेरा, आगे बढ़ते रहो ये तो थी इब्तिदा। अल इल्मु चलें जनाब, कैसे एबटाबाद की टीम हम तक पहुंची ये भी आपने देख लिया। वक्त हुआ है नाजरीन, आपसे एक सवाल किया जाता है, पिछले सिलसिले में किया गया था, उस सवाल का जवाब और खुश नसीब इस्लामी भाइयों के दरमियान कुरानदाजी। जी गुज़िश्ता सिलसिले में जो सवाल किया गया था वो सवाल ये था कि हज़रत सय्यदतुन्ना उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा का नाम क्या है। तो दुरुस्त जवाब था नसीबा बिनते काब रदी अल्लाह ताला अन्हा। माहनामा फैज़ान मदीना जमादिल ऊला 1442 सन हिजरी में ये जवाब मौजूद था। जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिए चंद के मुंतखब नाम ये हैं: बिनते करीम बख्श अत्तारिया वाकैंड, बिनते मोहम्मद नईम अत्तारिया हैदराबाद, बिनते मोहम्मद एहसान कराची, मोहम्मद जुनेद, बिनते रफ़ीक अत्तारिया सियालकोट, बिनते बशीर कादिराबाद, बिनते रियाज शाहपुर, बिनते सरफराज खानेवाल, बिनते सलीम हमजावाला, हमशीरा बाबर अली चकावाबाद, बिनते हाजी अहमद चंडू अल्लाह यार, बिनते अब्दुर्रहमान हाफिजाबाद, हमजा एजाज अत्तारी साहिवाल, अब्दुल्ला मुनीर अहमद फैसलाबाद, बिनते नवीद अत्तारिया उकाड़ा, हाफिज अफनान अत्तारी कराची, बिनते खालिद मेलसी रैयान नाजिर इस्लामाबाद, बिनते इम्तियाज़ बेसा कला। तो अभी इनके दरमियान इंशाल्लाह कुरानदाजी होगी। बिनते खालिद मेलसी ये अपने महरम के जरिए हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह इनका तोहफा इन तक पहुँचाया जाएगा। चलें जनाब, ये भी हो गया, कुरानदाजी भी हो गई। नाज़रीन आपको बताते हैं आज का सवाल जो एप्लीकेशन के जरिए आपने जवाब देना है, जल्दी जवाब देना है क्योंकि सिलसिले के आखिर में उसके दरमियान हम कुरानदाजी करते हैं। इंजील किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई? 4 ऑप्शन हैं: हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत आद अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। इन चारों में से कोई सही ऑप्शन है वो आपने जल्दी जवाब देना है। जवाब देने के बाद एक आईडी, एक कोड नंबर नजर आएगा, उसको सेव कर लीजिएगा। अब देखिएगा आखिर में हम जब 5 आईडीज अनाउंस करेंगे तो क्या मालूम उसमें आपका नाम भी आ जाए। तो जवाब जल्दी देना है आपने, माशाअल्लाह। चले जनाब,
क्विज एप्लीकेशन में अभी हमने ऐलान तो अभी किया है, लेकिन चूंकि क्विज एप्लीकेशन में पहले से आ जाता है तो मुझे बताया गया कि अभी 13 मिनट हुए हैं, सिलसिला शुरू हुए थोड़ी देर 13 मिनट हुए, तो 13 मिनट में 11 सवाल लाए हुए 13 मिनट हुए हैं और तकरीबन 1100 जवाब एप्लीकेशन पर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मजीद अब आप जिन्होंने सुन लिया वो भी जवाब दे दें। और अब सवाल है नाजरीन से कि हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाहि तआला का विसाल किस तारीख को हुआ। हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाहि तआला का विसाल किस तारीख को हुआ, ये जवाब आपने SMS के जरिए देना है। और ये नंबर आप SMS का देख रहे हैं 0341 वाला। और ये माहनामा फैज़ान मदीना जमादिल ऊला आपने पास सारे माहनामे मंगवाते रहा करें, तो इसमें से आपको जवाबात मिलते रहेंगे। तो ये भी आपने सिलसिले के इख्तिताम तक देना है। नाज़रीन, आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है, आइए आपको सेगमेंट्स दिखाते हैं। इल्म नूर है, इश्क के बोल, फतावा अहले सुन्नत बेहतरीन दोस्त, जान है तो जहान है, फर्क तलाश करें नसीब अपना अपना। इससे पहले के मुकाबले को आगे लेकर चले, कल का मुकाबला एक यादगार मुकाबला था, 3 टीमों के दरमियान था और उसके बाद आखिर में कुछ ऐसा हुआ जो कई लोगों के दिलों को छू गया। आइए उस मुकाबले की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 12 लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज हमें चौथी टीम की तलाश है और आज वो तमाम 3 टीमें मौजूद हैं जो किसी वजह से पिछले मुकाबलों में पीछे रह गई थी। वो कौन सी 4 चीजें हैं जिनसे रसूल पाक अलैहिस्सलाम पनाह मांगा करते थे? मकबूल ना होने वाली दुआ से पनाह मांगते थे, नफ़ा ना देने वाले इल्म से अल्लाह की पनाह मांगते थे, उस दिल से अल्लाह की पनाह मांगते थे जिसमें खौफ ना हो, और उस नफ्स से अल्लाह पाक की पनाह मांगते थे जो कभी सैर ना हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल-इल्मु नूर है, अल-इल्मु नूर है, अल-इल्मु नूर है, अल-इल्मु। 24 नंबर है इस्लामाबाद, 25 नंबर कराची, 26 नंबर डेरा गाजी खान, सबके दरमियान 1-1 नंबर का फर्क है। हर इस्लामी भाई के पास 5 नंबर हासिल करने का मौका है। मुकाबला पलट सकता है क्योंकि ठीक ठाक नंबर अभी भी मौजूद हैं। खुशबू लगाना सुन्नत है, सही। मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफा रज़ा खान साहब आला हजरत के शहजादे हैं, सही। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में शहीद हुए, गलत। मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को कश्ती नूह किनारे पर लगी थी, सही। दाता हुजूर का मजार रावलपिंडी में नहीं है, सही। जनाब 5 के 5 दुरुस्त जवाब दे दिए हैं। उस्कुरुल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जनाब एक बार फिर मुकाबला टाई हो गया है। डेरा गाजी खान और कराची वाले बराबर हो गए हैं। अब आला हजरत के मक्ते सुनाने हैं और ये दोनों टीमें बारी बारी सुनाएंगी। जो टीम एक के बाद दूसरा नहीं सुना सकेगी उस टीम ने मुकाबले में पीछे रह जाना है। कराची वालों की बारी है। या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क़ मुस्तफ़ा का साथ हो। जी हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक ना पाई, आबाद रजा जिस पे मदीना है, आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। जोर से सुभान अल्लाह भी तो कहते जाए ना। जी कराची वालों की बारी है। ए रजा जाने आना दिल तेरे नगमों के निसार, बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना, बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या है? जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुछ सुना दे इश्क के बोलूं में, ए रजा मुश्ताक तब आ लज्जत सोजे जिगर की, मुश्ताक तब आ लज्जत सोजे जिगर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पारा दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जनाब सेकंड चल रहे हैं, 5 सेकंड रह गए हैं। अल्लाह, और कराची वाले मुकाबला जीत गए हैं।
اللہ اللہ العلم علم نور ہے العلم نور ہے العلم. بہت دیر تک اشعار کی تکرار ہوتی رہی اور آخرکار کراچی والے ایک بہت ہی جس کو کہیں کہ مائنر سے فرق سے ایک سوال کے جواب کے مقابلے میں آگے بڑھ گئے، لیکن کمال کی ٹیم ڈیرہ غازی خان قلم سے جدا ہوئی. اسلام آباد والوں نے بھی بڑی کوششیں کی. بہرحال آج مقابلہ ہے فیصل آباد اور ایبٹ آباد کے درمیان. آئیے شروع کرتے مقابلہ. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ناظرین، جس کا نام ہے علم نور ہے. العلم نور العلم نور. جناب پہلا سوال فیصل آباد والوں سے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سخاوت، شفقت اور مہربانی کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے کیا فرمایا؟ مشورہ ضرور کیجئے، 25 سیکنڈ کے اندر کیجئے. حضرت امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سخاوت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ خوشحالی اور تنگ دستی میں ہر حال میں خرچ کرنا سخاوت ہے. اور شفقت مہربانی کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو حقیر و ذلیل رسوا جو ہے نہ جاننا، یہ جو ہے وہ شفقت و مہربانی ہے. اور تیسرا حلم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ خود کے نفس کو جو ہے وہ قابو میں رکھنا، نفس کو قابو رکھنا اور خواہشاتی پیروی نہ کرنا. یہ چلیں جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں. سوال تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سخاوت، شفقت اور مہربانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ سخاوت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تنگ دستی اور خوشحالی میں خرچ کرنا. پوچھا گیا شفقت تو مہربانی کس میں ہے؟ فرمایا قناعت اختیار کرنے اور کسی کو حقیر ذلیل نہ جاننے میں. پوچھا گیا حلم یعنی بردباری کیا ہے؟ فرمایا غصہ پی جانا اور نفس کو قابو رکھنا. اللہ کرے کہ یہ ساری نعمتیں ہمیں نصیب ہو جائیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب باری ہے ایبٹ آباد والوں کی. بتائیے مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنے کی کیا نحوست ہے؟ کافی سارے ناظرین موجود ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، دنیاوی گفتگو نہ کیا کریں. اب سنیے اس کی نحوست کیا ہے. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں دنیا کی بات کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے اعمال اکارت کر دے. اللہ 40 برس کے نیک اعمال اکارت کر دے. اب بتائیے ویسی نیکیاں نہیں اور مسجد میں جا کر اگر دنیاوی گفتگو کریں گے تو معلوم ہوا کہ ثواب لینے کی بجائے گناہ لے کر واپس آئے. جواب درست دے دیا ہے جناب. فیصل آباد والوں کی باری. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک کے بارے میں کیا فرمایا؟ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے دنیا سے فنائے دنیا تک تمام لوگوں کو جو عقل عطا فرمائی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے تمام ریگستانوں کے مقابلے میں ایک ریت کا ذرہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور رائے تمام لوگوں سے راجع اور افضل ہے. کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل اور رائے تمام لوگوں سے زیادہ راجع اور افضل ہے. کیا شان ہے میرے آقا کی. جواب درست دے دیا ہے. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے آقا کی. بتائیے رات کے وقت 10 آیات پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ایبٹ آباد والے بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا طاؤس بن کیسان فرماتے ہیں کہ سنو بندہ رات کو قرآن پاک کی 10 آیات پڑھتا ہے، وہ صبح اس حال میں کرتا ہے اس کے لیے 100 یا اس سے زائد نیکیاں لکھ دی جاتی. تو وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے لیے 100 یا اس سے زائد نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. سونے سے پہلے بھی تلاوت قرآن کیا کریں. اللہ کرے کہ روز تلاوت قرآن کرنے والے بن جائیں. جواب درست دے دیا ہے. بیمار دل کی کتنی دوائیں اور کون سی ہیں؟ فیصل آباد والوں سے سوال ہے. بیمار دل کی جو ہے وہ 5 دعائیں ہیں. نیکوں کی صحبت اختیار کرنا،
کم کھانا، تلاوت قرآن پاک کرنا، تہجد ادا کرنا اور رات کے آخری حصے میں گریہ زاری کرنا۔ کیا بات ہے، بیمار دل کی یہ 5 دوائیں ہیں۔ اگر دل کو یا کہتے ہیں روحانی طور پر امپروو کرنا ہے تو یہ 5 دواؤں کا استعمال کر لیں۔ نمبر 1 نیکوں کی صحبت، نمبر 2 تلاوت قرآن، نمبر 3 کم کھانا، نمبر 4 فرمایا کہ تہجد کی پابندی، اور نمبر 5 رات کے آخری حصے میں گریہ وزاری۔ اللہ یہ نعمت نصیب فرمائے ہمارے بیمار دلوں کو، اللہ کرے کہ نبی پاک کے عشق کا مدینہ ہم بنا لیں۔ جواب درست دے دیا جناب۔ ایبٹ آباد والوں کی باری ہے۔ ہر جمعے کو والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کے پاس سورہ یاسین پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ہر جمعے کو والدین یا دونوں میں سے ایک کی قبر کے پاس سورہ یاسین شریف پڑھنے سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یوں بھی ہے کہ دعا پڑھ اس طرح سورہ یاسین شریف پڑھنے سے سورہ یاسین شریف میں جتنے حروف ہیں ان کے گنتی کے برابر ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یاسین میں جتنے حروف ہیں ان سب کی گنتی کے برابر اللہ عز و جل ان کے لیے مغفرت فرمائے گا۔ تو والدین کی قبر پر بھی جانا چاہیے، ہر جمعے جائیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ فیصل آباد والوں سے سوال ہے، اہل عرب کے شعر کے مصروں میں سب سے سچا مصرع کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل عرب کے شعروں میں سب سے سچا جملہ یہ ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ فنا ہونے والی اور باطل۔ سن لو، اللہ عز و جل کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری ایبٹ آباد والوں کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین حضرت سیدتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا کلمات سکھائے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جنہیں تم پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ ما حلل علی کل نفس ما حلل اللہ باطل صلی اللہ تعالیٰ۔ نہیں جناب، وقت ختم ہو گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا 3 مرتبہ سبحان اللہ عدد خلقہ، 3 مرتبہ سبحان اللہ رضا نفسہ، 3 مرتبہ سبحان اللہ زنت عرشہ، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ مداد کلماتہ پڑھا کرو۔ غلطی ہو گئی ہے جناب۔ اب باری ہے فیصل آباد والوں کی۔ سوال کریں گے، لوگوں کا نماز ضائع کرنا کس چیز کی علامت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں تم یہ دیکھو گے کہ لوگوں کی جو ہے وہ نشانی یہ ہوگی کہ وہ نماز کو جو ہے وہ ترک کریں گے۔ تو ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اس سے مراد یا تو نماز کا چھوڑنا ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ نماز کے فرائض و واجبات جو ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ نماز کا ضائع کرنا یعنی یا تو وہ نماز ہی نہیں پڑھیں گے یا پھر نماز کے فرائض یا واجب چھوڑ دیں گے۔ جواب درست دے دیا جناب۔ 5واں سوال، آخری سوال اس سیگمنٹ کا ایبٹ آباد والوں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو خط میں سب سے اہم کس کام کا حکم دیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو پیغام بھیجا کہ تمہارے سب کاموں میں سے اہم میرے نزدیک نماز ہے، اگر تم نے اس پر محافظت حاصل کی، یعنی اس کو وقت پابندی کے ساتھ پڑھا اور درست کر کے پڑھا، تو یہ تم نے اپنے ایمان کی حفاظت فرما لی، اور اگر ایسا نہ کیا تو اس کو ضائع، جس نے اس کو ضائع کیا وہ اور اس سے زیادہ ضائع کرے گا۔ جناب ذرا غور کیجئے، حضرت عمر گورنروں کو بھی نماز کی تلقین دیا کرتے اور نماز کی پابندی کا حکم فرمایا کرتے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ ایک غلطی ہوئی ہے ہمارے ایبٹ آباد والوں سے، مگر گھبرائیں نہیں، ابھی مقابلہ بہت باقی ہے۔ ہم نے کل بھی دیکھا کیسے پانسا پلٹ جاتا ہے آخر میں جا کر۔ اس سے پہلے کہ اسکور بورڈ کی طرف چلے، یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ جی، کو ہوسٹ تو موجود ہے مگر انشاءاللہ جب ہم اچھا منی ہوسٹ، جی منی ہوسٹ، اچھا جناب، کڈز مدنی چینل کے ہمارے رمضان رضا ہیں، آج یہ حاضرین سے سوال کریں گے ارے واہ بھائی، چلیں چلیں جناب۔ کل ایک کال بھی آئی تھی کہ رمضان بھائی کو بھی بلائیں، تو چلیں آج یہ آئے ہوئے تھے تو ہم اپنے آج منی ہوسٹ کو متعارف کراتے ہیں۔ جی حاضرین سے سوال یہ ہے کہ بتائیں دوران وضو یا قادرو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ دوران وضو یا قادرو، چلیں جناب اب جائیے جناب اور دیکھیں کس سے جواب لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران وضو یا قادرو پڑھنے سے اغوا سے بچا رہتا ہے۔
जी बताइए जनाब। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब तोहफा पेश कीजिए इन्हें। अच्छा नीचे इस्लामी भाई तशरीफ ले आए तो नीचे वालों से भी एक सवाल कर लेंगे। जी शहबाज भाई। जी तैयारी है तो सवाल कीजिए भाई नीचे वालों से। सवाल ये है, 4 मशहूर आसमानी किताबें जिन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम पर नाजिल हुई, उनमें से चारों के नाम बता सकते, चारों के बता दें, वरना कम से कम 2 के नाम बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुर्रहमान अत्तारी है। आपने सवाल किया कि 4 आसमानी किताबों के नाम और जिन अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई उनके नाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील नाजिल हुई, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ, उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई, और हज़रत आराम से इजी हो जाएं। आपको जवाब आता है, आप घबरा गए हैं और आपने 3 तो वैसे ही बता दिए, इनाम आपका हो चुका है। अब सुकून से सोचिए कि फ़िरौन के मुकाबले में कौन से नबी थे? सलाम पर हाँ तौरात नाज़िल हुई। ठीक है माशाल्लाह। चले तोहफा दे देने। इन इस्लाम भी को इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मुबारक पानियों का मजमुआ पेश किया जा रहा है और गिलाफे काबा का टुकड़ा शरीफ भी पेश किया जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले इन्हें तोहफा दे दें, मुबारक हो। जनाब चलते हैं स्कोर बोर्ड, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। रास्ता है बड़ा। जनाब 8 नंबर एबटाबाद, 10 नंबर फैसलाबाद। इससे पहले कि अगले सेगमेंट की तरफ चलें, आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इश्क के बोल। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। इश्क के बोल सेगमेंट में 5-5 अशार दोनों टीमों से पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं कि अशार की तैयारी कैसी है। पहला सवाल होगा फैसलाबाद वालों से। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब एबटाबाद वालों से सवाल है। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लुटते हैं मारे जाते हैं यूं ही सुना किए। हर बार दी वो अमन के गैरत हजर की है। हर बार दी वो अमन के गैरत हजर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ना हो मायूस दीवानों पुकारे जाओ तुम उनको। फैसलाबाद वाले बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में। बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से। सुकून पाएगा बस मेरा दिले मुस्तर मदीने में। सुकून पाएगा बस मेरा दिले मुस्तर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नबी की बदौलत बरोज़े क़यामत खुदा वंदे आलम का दीदार होगा। इंशाअल्लाह खुदा वंदे आलम का दीदार होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिसे चाहें बख्शें के खुल्दो जिना में। जिसे चाहें बख्शें के खुल्दो जिना में। खुदा की कसम दखले सरकार हो। खुदा की कसम दखले सरकार होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये वही है कि गिरो आप और उन पर मचलो। ये वही है कि गिरो आप और उन पर मचलो। उल्टी बातों पे कहो कौन ना सीधा करता। उल्टी बातों पे कहो कौन ना सीधा करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। छुप गया चांद न आई तेरे दीदार की ताब। और अगर सामने रहता भी तो सजदा करता। और अगर सामने रहता भी तो सजदा करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब, जबरदस्त तैयारी है। चले यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की बारी है। इसी कलाम का पहला शेर सुन लेते हैं। अगर आपसे हम इसमें से कुछ ना कुछ शेर सुनेंगे, आज नाथवा नहीं है हुजूर। जी जी तो आप कोई शेर सुनाएं। चले इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे, लेकिन मैं इसी कलाम का जो पहला
आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता। क्या खूबसूरत शेर है। चलें जनाब, जो हमारे मेहमान हैं उनसे सुनिएगा, ज़हनी आजमाइश वालों को तो याद ही होते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, हर एक दिन चांद तसद्दुक में उतारा, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। जवाब दे दिया, चला दुरुस्त मान लेते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इन्हें इत्रे मदीना और सूरह नूर की तफसीर ये इंशाल्लाह इन्हें पेश की जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले नीचे स्लाइड में मौजूद है एक शेर, वो भी सुनाएंगे। गोरे गोरे पांव चमका दो खुदा के वास्ते। जी शहबाज भाई। गोरे गोरे पांव चमका दो खुदा के वास्ते। अस्सलामु अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अज़मी तैयारी मुकदमे नंबर 3 से आया हूँ जी। नूर का तड़का हो प्यारे नूर की शबतार है। नूर का तड़का हो प्यारे गोर की शबतार है। गोर कहते हैं कब्र को, कि हुजूर आपके कदम मेरी कब्र में लग जाएंगे, आप करम फरमाएंगे तो मेरी कब्र भी रोशन हो जाएगी, नूर वाली हो जाएगी। जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं, इन्हें तोहफा दे दें और इनसे 3 दिन का मदनी काफिला भी ले लें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह शेर भी सुनते हैं। चलें जनाब, कॉल लेते हैं सिलसिले में जी। मैं राजस्थान से बात कर रही हूँ। अब्दुल हबीब भाई, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आवाज के साथ साथ आपका मंच भी बहुत प्यारा है। अब्दुल हबीब भाई, आप सेगमेंट मुकम्मल कीजिए, कब लाएंगे? जब आप ये सेगमेंट लाते हैं तो हम भी मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमारी दावत इस्लामी को मजीद तरक्की दे, आमीन। बहुत शुक्रिया। मुकम्मल कीजिए, सेगमेंट भी जल्द शामिल होगा। अगली कॉल दीजिए। पाक पतन से कर रही हूँ। मेरी उम्र 3 साल है। अब्दुल भी मुल्कर आपका सिलसिला यानी आजमाइश बहुत अच्छा लगता है। अब्दुल भी मुल्कर आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह आज से गलती होगी। क्या बात है। 3 साल की मदनी मुन्नी, मुझे तो ये समझ नहीं आता इनको समझ क्या आता होगा हमारे सिलसिले में। बहरहाल इन सब बच्चों का प्यार है। ये तो आपको कह रही हैं, आपसे गलती हाँ, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दें। चले जनाब, शेर सही साहब ने हुक्म फरमाया तो माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे शेर थे। कसीदा नूर के अशार थे, सुभान अल्लाह। चले मिलके पढ़ लेते हैं। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू सब घराना नूर का। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। चलिए जनाब, अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे, उससे पहले देखेंगे हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है जी। 18 नंबर है जनाब इस्लामाबाद के साहिवाल। थोड़ी सी गलती हो गई लगता है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इंशाल्लाह स्कोर बोर्ड भी देखेंगे, मगर उससे पहले हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ इंशाल्लाह। एबटाबाद के 18 नंबर हैं और फैसलाबाद के 20 नंबर हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है फतावा अहले सुन्नत। जी, फतावा अहले सुन्नत में पहला सवाल करेंगे फैसलाबाद वालों से। क्या मकरू औकात में सजदा शुक्र कर सकते हैं? बताइए फतावा अहले सुन्नत में इसका क्या जवाब लिखा हुआ है? सजदा शुक्र जो है ये वाजिब नहीं है, नफली तौर पर जो है ये किया जाता है। तो जिन औकात में नफल पढ़ना जो है ये मकरू है, उन्हीं औकात के अंदर सजदा शुक्र करना भी जो है वो मकरू है। जी, नवाफिल पढ़ना जिन औकात में मकरू है, उन्हीं औकात में सजदा शुक्र भी मकरू है। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
ایبٹ آباد والوں سے سوال ہے کیا نماز میں اتنی دیر کھانسنا جس کی وجہ سے 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار گزر جائے اس کیا سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے؟ بتائیے فتاوی اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہوا ہے؟ اگر یہ عذر کی وجہ ہے کہ 3 بار کھانسنے سے قرات کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار گزر گئی یا کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو گئی تو یہاں پر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ عذر کی وجہ سے، یعنی کوئی بیماری ہے، گلا خراب بھی ہوتا ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو کھانسنے کی وجہ سے بالفرض اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی قدر قراءت کے تشہد وغیرہ میں سکوت ہو جائے، بندہ خاموش ہو جائے، یا فرض واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے تو اس سے نماز پر کچھ اثر نہیں پڑتا، اور اس صورت میں سجدہ سہو بھی لازم نہیں آتا۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ سجدہ شکر کی بات ہوئی تھی، یہ بتائیے کیا بے وضو سجدہ شکر کر سکتے ہیں؟ جی سجدہ شکر جو ہے یہ بے وضو نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی نماز کی طرح طہارت کا ہونا سجدہ شکر کے لیے بھی نماز کی طرح طہارت ضروری ہے، بے وضو سجدہ شکر نہیں کر سکتے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ایبٹ آباد والوں سے سوال ہے کیا جائے نماز میں رمضان کے آخری 10 دنوں کا سنت اعتکاف کروایا جا سکتا ہے؟ بتائیے فتاوی اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہے؟ مرد کے لیے وقف مسجد کو ہونا ضروری ہے۔ یہ جائے نماز پر مرد کا اعتکاف نہیں ہو سکتا، البتہ اسلامی بہنوں کے لیے مسجد بیت جو گھر میں نماز کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے اس میں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ جی جناب، مرد کے لیے اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے، اور وقف مسجد ہو، جائے نماز پر جو ہے وہ مسجد نہیں ہوتی تو وہاں اعتکاف بھی نہیں ہو سکے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ میں دوبارہ اس جواب کو پورا پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ مردوں کے اعتکاف کا وقف مسجد میں ہونا ضروری ہے، اور جائے نماز چونکہ مسجد نہیں ہوتی لہذا اس میں اعتکاف کرنا بھی درست نہیں۔ صرف عورتوں کا وقف مسجد کے علاوہ اعتکاف کے لیے، نماز کے لیے جو گھر میں وہ مخصوص جگہ بناتی ہیں جسے مسجد بیعت کہتے ہیں، اس میں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، مگر مرد کے لیے جو اعتکاف ہے اس کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ جناب بڑی زبردست تیاری ہے، فتاوی اہل سنت کے جواب بھی صحیح طریقے سے انہوں نے درست دے دیے ہیں۔ ایک کال شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے۔ جی میرا نام شافیہ تاریہ ہے، میں غروری ٹاؤن اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ عبدالحبیب انکل مشکات فاطمہ کہہ رہی تھی کہ میں اگلی دفعہ آؤں گی، وہ پھر نہیں آئی، کیا آج آئیں گی؟ یہ تو سوال زبردست ہے۔ مشکات امیدیں دیکھ رہی ہوں گی، چلیں کوشش کرتے ہیں کل ان کو لے کر آتے ہیں۔ سردی بھی کافی ہے لانے لے جانے کے لیے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ۔ چلیں اگلی کال دیجیے۔ میرا دھیان مدنی ہے، میرا نام غلام محمد اختاری ہے، ہم دونوں توسا شہری سے بات کر رہے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی، آپ کو مرشد کے ساتھ چل مدینہ نصیب ہو، آمین آمین، اور ہم سب کو بھی نصیب ہو، آمین آمین۔ کیا بات ہے، کتنی پیاری دعا دے دی ماشاءاللہ 2 مدنی منوں نے۔ آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں جناب۔ جی 22 نمبر ہیں ایبٹ آباد والوں کے، 24 نمبر ہیں فیصل آباد والوں کے، 2 نمبر کا فرق ہے۔ اگلا سیگمنٹ مقابلے کو پلٹ سکتا ہے، نام ہے بہترین دوست۔ العلم نور، العلم نور۔ جی بہترین دوست سیگمنٹ میں کتاب پہچاننی ہے، ذرا چیک کیجئے کیا آپ کو بھی کتابوں کا علم ہے یا مطالعہ کرتے ہیں کہ نہیں۔ کتاب ایک بہترین دوست ہے ناظرین، پڑھتے جائیے اور علم دین سیکھتے جائیے۔ 5 آپشنز ہوتے ہیں، ان آپشنز میں انہیں پہنچنا ہوتا ہے، جتنے کم آپشنز میں، جتنے کم اشاروں پہ پہنچتے ہیں اتنے نمبر زیادہ ملتے ہیں۔ باری فیصل آباد والوں کی ہے، بتائیے کس آپشن پر جائیں گے؟ جی 2 نمبر۔ جی 2 نمبر فیصل آباد والوں نے کہا ہے۔ 2 نمبر کے پیچھے مصنف کا نام ہے، بتائیے امیر اہل سنت نے یہ کتاب لکھی ہے۔ جی کسی اور آپشن کی طرف جائیں گے؟ 4 نمبر۔ 4 نمبر، 4 نمبر کے پیچھے صفحات ہیں، امیر اہل سنت کی 19 صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ ابھی بھی جواب دیں گے تو 4 نمبر مل جائیں گے۔ 5 نمبر آپشن لیں گے جناب۔ 5 نمبر زبان اردو ہے۔ 3 نمبر۔ 3 نمبر اس کی جلدیں، اللہ 19 صفحات ہوگی تو جلد تو ایک ہی ہوگی۔ اب جناب آخری آپشن موجود ہے، وہ بھی لیں، 1 نمبر بھی کھول دیں جناب۔ موضوع کیا ہے اس کتاب کا؟ عقائد پر مشتمل کتاب ہے، 19 صفحات ہیں۔
صحیح جواب دیں گے تو 1 نمبر ملے گا, نہیں جواب دیں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. 28 کفریہ کلمات. جی جناب, 28 کلمات کفر یہ رسالہ ہے, کمال کا رسالہ ہے, پڑھنا چاہیے. 1 نمبر حاصل کر لیا ہے فیصل آباد والوں نے. اب باری ہے ایبٹ آباد والوں کی, چاہیں تو آگے نکل سکتے ہیں. آپشن دکھائیے جناب. جی 2 نمبر. 2 نمبر. صفحات جی 26 صفحات ہیں. چاہیں تو جواب دے کر 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں, چاہیں تو آپشن لے سکتے ہیں. 1 نمبر کھولیں. 1 نمبر کھولیں جناب. زبان, اردو زبان کی کتاب ہے, صفحات ہیں 26. تین کھولیں. 3 نمبر. مصنف امیر اہل سنت, 26 صفحات, اردو زبان. اللہ اکبر, میں تو سمجھا آج 5 نمبر لے جائیں گے ایبٹ آباد والے. 4 نمبر بھی کھول دیں جناب. جلدیں, اب 26 صفحات کی تو ایک ہی جلد ہونی ہے. 4 آپشن ہو گئے ہیں. کیا 5 نمبر بھی کھول دیں آپ کے لیے؟ بتا جناب, کھول دیں. موضوع سیرت پر یہ کتاب ہے, 26 صفحات ہیں, 1 جلد ہے, اردو کتاب ہے, امیر اہل سنت نے لکھی ہے. کربلا کا خونی منظر. کربلا کا خونی منظر, 1 ہی نمبر یہاں بھی حاصل کیا ہے جناب. اب پھر چلیں گے. یہ کتاب ایسی ہے کہ اس رسالے میں واقعہ کربلا کے مختصر احوال بیان کیے گئے ہیں, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اب باری ہے فیصل آباد والوں کی جناب. 3 نمبر. 3 نمبر بتائیے. زبان, اور اردو زبان ہے جناب. 4 نمبر کھول. 4 نمبر. صفحات, صفحات بتائیے. 616 صفحات ہیں جناب. اب جواب دیں گے تو 4 نمبر مل سکتے ہیں. نیکی کی دعوت. ان کا کہنا ہے نیکی کی دعوت. صفحات تھے 616, زبان تھی اردو. چلے ایک اور آپشن جناب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں فیصل آباد والوں نے. اور اب باری ہے ایبٹ آباد والوں کی. 2 نمبر. 2 نمبر. موضوع تصوف کے موضوع پر یہ کتاب ہے. 4 نمبر. 4 نمبر. مصنف امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ, اور تصوف کا موضوع ہے. اب جواب دینے پر انہیں 4 نمبر مل سکتے ہیں. جی 6 سیکنڈ ہیں. شرح الصدور. آپ کہہ رہے ہیں شرح الصدور. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. 4 نمبر پھر حاصل کیے ہیں ہماری ایبٹ آباد کی ٹیم نے. کمال کی کتاب ہے ناظرین, یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور اب مقابلے میں پھر 2 نمبر کا فرق ہے. پہلے سیگمنٹ میں دونوں نے 1 نمبر لیا, پھر دونوں کو ایک ساتھ ہی جوش آ گیا اور دونوں نے 4 نمبر حاصل کر لیے. تو چلیں جناب پھر جائیں گے اسکور بورڈ کی جانب, لیکن ایک کال بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام سید محمد ارمان رضا اتاری ہے. آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا اور پیارا ہے. آپ کے مدنی قافلے کے ساتھ مدینے جانے کا بہت ارمان ہے. آپ دعا فرمائیں. جزاک اللہ. آمین آمین. اللہ کرے کہ خیر سے راستے کھل جائیں اور لوگ آسانی سے مکے مدینے جائیں اور ہم سب بھی جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ. آئیے ناظرین اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. دور ہے منزل 27 نمبر ہیں ایبٹ آباد کے, 29 نمبر ہیں فیصل آباد والوں کے. 2 نمبر کا فرق ہے. اور اب سیگمنٹ ہے جان ہے تو جہان ہے. العلم نور العلم نور.
बड़ा कमाल का सेगमेंट है नाजरीन, जान है तो जहान है। इसमें हम ट्रैफिक के कवानीन के बारे में सिखाते हैं ताकि लोग एहतियात करें और हादसात से खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। मैं चाहूँगा घर में जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारे हर इशारे को स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल से पिक्चर खींच लें, खुद भी याद रखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं कि ये इशारा किस चीज़ का है। पहले बारी है फैसलाबाद वालों की, दिखाइए इशारा। रेलवे गेट फाटक। जी, गेट वाला रेलवे फाटक, मतलब वाज़ेह है कि इस रेलवे फाटक पर जब गेट खुला हुआ हो तो आप गुजर सकते हैं, और अगर बंद है तो ट्रेन के गुजरने का इंतजार करना पड़ेगा, वरना खतरनाक हादसा रूनुमा हो जाता है। बदकिस्मती से हमारे वतन में आए दिन हम सुनते हैं कि जहां फाटक था वो बाज़ औक़ात गलती से खुला रह जाता है, या लोग उसे फलांग कर जा रहे होते हैं, उसके नीचे से जा रहे होते हैं, और फिर ट्रेन आ जाती है और हादसे का शिकार हो जाते हैं। कुछ मिनट इंतजार कर लें, क्योंकि जान है तो जहान है। फैसलाबाद वालों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इस बारे में एक वीडियो भी है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये फाटक बंद हो गया है और इस फाटक का मतलब यह है कि रुक जाइए, लेकिन वहां टाइम भी चल रहा है। लेकिन अब फाटक पे रुकने वाले लोग कुछ थोड़े ही होते हैं, बाज़ औक़ात कुछ ज़्यादा ही जल्दी होती है, तो उसके बाद प्रॉब्लम ये होता है कि गाड़ी आ जाती है और ट्रेन भी साथ आ जाती है। चंद सेकंड का इंतज़ार लोग करने के लिए बाज़ औक़ात तैयार नहीं होते, और फिर अल्लाह माफ़ करे, बड़ा शदीद जो है वो हादसा हो जाता है। देखिए, अब ये गाड़ी आई है, इनको रुक जाना चाहिए था, मगर ये आए और उसके बाद जो है ये ट्रेन भी आ गई। अल्लाह अकबर। आप सोचें ये कैसा हादसा हुआ होगा। ये सोचने वाली बात है कि जब फाटक लगा हुआ है तो रुक जाएं, ये हमारी जान बचाने के लिए है। तो उम्मीद है कि आइंदा नाजरीन, बिलखुसूस हमारे वतन में तो कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है कि फाटक ही नहीं है, तो अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरान भी सुन रहे हों, जब फाटक नहीं वह लगा दिए जाएँ, और जहाँ हैं वहाँ भी एहतियात करें, जहाँ नहीं भी हैं तो आस पास देख कर, बाज़ औक़ात कोई बंदा खड़ा होता है, वो समझा भी रहा होता है, उसको मालूम होता है कि ट्रेन आने वाली है, मगर उस बेचारे की कोई सुनता नहीं। 2-3 मिनट का फ़र्क पड़ता है। जान है तो जहान है। जनाब एबटाबाद वालों की बारी है, आइए इशारा बताइए। नो पार्किंग। जनाब नो पार्किंग, यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। अब क्या करें जनाब, जहाँ ये बोर्ड लगा होता है वहीं ज़्यादा लोगों को खड़ी करनी होती है, तो कभी तो बात मान जाया करें, ये जगह पार्किंग के लिए नहीं होती। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। चलें, अब फिर बारी है फैसलाबाद वालों की, बताइए ये इशारा कौन सा है। ये बत्तियों वाला इशारा। बत्तियों वाले इशारे का ये यूं समझिए कि इशारा है। इस अलामत का मतलब यह है कि सड़क पर गाड़ियों की रवानी बत्तियों वाले इशारे से हो रही है। अगर रेड लाइट चल रही है, लाल बत्ती जल रही है तो रुक जाएं, और अगर ग्रीन लाइट है, हरी बत्ती है तो गुजर जाएं। लेकिन जनाब सिग्नल की पासदारी भी कुछ लोग नहीं करते। एक छोटा सा इसमें वीडियो मैसेज भी आपको दिखाते हैं। जवाब अलबत्ता दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह जी। अब ये लाल लाइट जल रही है और ये भाई अल्लाह बगैर लाल लाइट देखे आप जा रहे हैं और उस बाद एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि जब आपके लिए रेड लाइट है तो इसका मतलब यही है कि किसी और के लिए ग्रीन लाइट है। आप उसे क्रॉस करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है और ये शदीद हादसात होते हैं, लोग दुनिया से चले जाते हैं। तो हमें एहतियात करनी चाहिए और रेड लाइट पर बिल्कुल रुक जाना चाहिए। ये भी ना सोचे कि रात का वक्त है, क्योंकि रात के वक्त भी लोग स्पीड में होते हैं, हादसात हो जाते हैं। याद रहे, जान है तो जहान है। अब बारी है एबटाबाद वालों की, बताइए जनाब ये इशारा किस चीज का है। रेलवे फाटक बदूं गेट। जी जरा मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब यह है कि इस रेलवे फाटक पर गेट नहीं लगा हुआ है। बिदून यानी बगैर गेट के ये फाटक है। अगर ट्रेन आ रही है तो ठहर जाएं, ट्रेन के कोई आसार नहीं आ रहे तो गुजर जाएं, मगर दाएं बाएं देखकर गुजरें। पता चला कि फाटक नहीं है तो जाना ही जाना है, तो इस पे भी एहतियात करें। इसमें भी हादसात होते हैं और बदकिस्मती से हमारे वतन में इसमें ही ज्यादा हादसात होते हैं। लोग रुकते ही नहीं है जिस फाटक पर गेट ना हो। तो जनाब आसपास देख तो लें, थोड़ा दूर तक देख लें और फिर एहतियात के साथ गुजरें। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। एबटाबाद वालों ने भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। आइए आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं इस हवाले से। अब ये बगैर फाटक वाला गेट है और आप देखें ये ट्रेन आ रही है, शायद ये ट्रेन में ही कैमरा लगा हुआ है। अल्लाह हू अकबर। तो हमें एहतियात करनी है
اور ایسی جگہ سے نہیں اپنی گاڑی لے کر جانی ہے کہ جہاں پھاٹک نہیں ہے، تھوڑا پیچھے رک جائیں اور ٹرین کو گزرنے دیں. چلیں جناب، یہ بھی ہو گیا سیگمنٹ جان ہے تو جہان ہے. آئیے اس کے بعد پھر اسکور بورڈ دیکھیں گے، مگر آئیے کال بھی لیتے ہیں. حبیب اتاری انکل، میں بنتے مجاہد علی بات کر رہی ہوں. آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے، ہمارے گھر میں سب شوق سے دیکھتے ہیں. آپ پلیز میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ مدینہ شریف جاؤں. آمین آمین. اللہ آپ کو بھی سفر مدینہ عطا فرمائے، ہمیں بھی نصیب فرمائے. بہت شکریہ آپ کی کالز کا. دونوں ٹیمیں بھی تشریف لائیں گی، نیک اعمال کا جائزہ بھی لیں گے، پھر نعت خوانی بھی ہوگی اور مزید آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تمام اسلامی بھائی، آپ نے نیک اعمال کا جائزہ شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی سے روزانہ ہی بلاؤں وباؤں سے نجات کے لیے مدنی چینل پر براہ راست بھی اذان دی جاتی ہے. اب اذان کا سلسلہ ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ ہوگا. اپنے رسالے بھی نکال لیجئے، مگر اس وقت ادب و شوق کے ساتھ اذان کے احترام میں خاموشی سے اذان سماعت کیجئے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी ला इलाहा इल्ला अंता बिस्मिल्लाहि अला दीनी बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व वुल्दी व अहली व माली या मुयस्सिर कुल्लि अम्रिन असीर यस्सिर ली अमरी या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। रब करीम जितने करोना वायरस के मरीज़ हैं उन्हें शिफा अता फरमा, सारी दुनिया से करोना वायरस का ख़ात्मा फरमा दे। और अल्लाह इस मरज़ की वजह से और दीगर अमराज की वजह से भी जो लोग दुनिया से चले गए, मौला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, आल और औलाद, दीन और ईमान की हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आइए नाज़रीन, नेक आमाल का जायज़ा अपनी अपनी एप्लीकेशंस निकाल लें या रिसाले निकाल लें और अपने नेक आमाल का जायज़ा कीजिए। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा हासिल करने और रसूल सवाब के लिए अच्छी अच्छी नीयतों के साथ नेक आमाल के ज़रिए अच्छा जो है वो इज्तिमाई मुहासबा करते हैं। नंबर 1, अच्छी अच्छी नीयतें की। नंबर 2, 5 नमाज़ बाजमात अदा की। नंबर 3, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी। 4, सूरह मुल्क पढ़ी या सुनी। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फ़ातिमा, सूरह इखलास पढ़ी। कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हा तर्जुमा और तफसीर पढ़े या सुने। शजरा शरीफ के औरात पढ़े। 313 बार दुरूद पाक पढ़े। आँखों का कुफले मदीना, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें नीचे रखी। 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी। अज़ान व इकामत का जवाब दिया। गुस्से का इलाज किया। अपना जायज़ा किया। अपने निगरान की इताअत की। आप और जी कहकर बात की। मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया। इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए। 2 घंटे दीनी कामों में सर्फ किए। फजर के लिए जगाया। दूसरों के घरों के अंदर झांकने से बचे। घर दर्श हुआ। मस्जिद दर्श दिया या सुना। सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना। जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है। एक मुश्त दाढ़ी है। गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की। सुन्नत के मुताबिक खाना खाया। मुसलमानों को सलाम किया। कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया। ज़ोहर की सुन्नत कबलिया फ़र्ज से पहले अदा की। तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी। अव्वाबीन या इशराक व चाश पढ़ी। असर या इशा की सुन्नत कबलिया पढ़ी। 12 मदनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई। दूसरों से मांग कर चीज़ इस्तेमाल तो नहीं की। झूठ, गीबत, चुगली, हसद से बचे। कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा। ज़ाती दोस्ती तो नहीं की। वक्त पर कर्ज अदा किया। आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल ताईद ना करे। सफाई और सलीके का ख्याल रखा। मुसलमानों के अयूब की पर्दापोशी की। बाद फजर तफसीर सुनने या सुनाने के हल्के में शिरकत की। कुछ न कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी। चौक दर्स दिया या सुना। वालिदैन और पीर मुर्शिद को इसाले सवाब किया। इसराफ से बचे। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की। तंजीमी तरीक़ाकार के मुताबिक मसला हल किया। ज़बान के गुनाहों से बचे। फजूल बातों से बचे। मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे। इमाम शरीफ बांधा। माँ बाप का अदब किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हम सबको पाबंदी के साथ नेक आमाल के जरिए अपना मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आइए नाजरीन, अब नाज शरीफ का वक्त हुआ है। हमारे मुबल्लिग से नाज शरीफ सुनते हैं। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना। लज
لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا جد وقت نزاوے جد وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا کا جد وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا میں نعت تیری پڑھنا کا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نالا کا اس ذکر دی برکت میری قبر وسا دینا اس ذکر دی برکت میری قبر وسا دینا آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لے وے لج پالا لج رکھ لے وے لج پالا دینا اٹھا دینا لج رکھ لے وے لج پالا دینا اٹھا دینا میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ تیرا سگاوا یا رسول اللہ کا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لے وے لج پالا لج رکھ لے وے لج پالا دینا اٹھا دینا دینا اٹھا دینا گھر کرم تم نہ کرو گے کون کرے گا کر کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے آقا تیری محفل وچ
رکھ لے وے لجپالا خالی نہ اٹھا دینا لاج رکھ لے وے لجپالا خالی نہ اٹھا دینا میں نہ تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا دل روندا ہے جان دینے دل روندا ہے جان دینے جدنوں کی مدینے نو دل روندا ہے جان دینے جدنوں کی مدینے نو دل روندا ہے آقا 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 دل روندا ہے جان دینے جدوں کی مدینے نو ہن سانو وی آقا آقا ہن سانو وی آقا دربار دکھا دینا آقا ہن سانو وی آقا دربار دکھا دینا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا ہن سانو وی آقا آقا ہن سانو وی آقا دربار وچ وکھا دینا ہن سانو وی آقا دربار وچ وکھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا درداں دی دوا دینا جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا آمین 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 اللہ کرے گا انشاءاللہ پھر جائیں گے مدینے اور
जल्द जाएंगे इंशाअल्लाह। जी एक दो कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। सिलसिला ज़हनी आजमाइश माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत अच्छा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अब्दुल हबीब भाई को शादो आबाद रखे। अब्दुल हबीब भाई से नाकिस मशवरा है, ज़हनी आजमाइश में आप जो सवालात वगैरह करते हैं नाज़रीन से एप्लीकेशन के ज़रिए और मैसेज के ज़रिए, अगर वो सिलसिला शुरू होते ही आप कर लिया करें तिलावत से पहले, ताकि सेगमेंट शुरू होने से पहले नाज़रीन जो है वो जवाबात वगैरह तलाश करके दे सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। असल में तिलावत से पहले अगर कर देंगे तो वो तिलावत के दौरान फिर जवाबात दे रहे होंगे, तो तिलावत तो अदब से सुनना है ना। बहरहाल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम इंशाल्लाह सवाल कर लें। जी अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम फिजाम मजीद अख्तारी है। अब्दुल हबीब भाई, आपका प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह आपको मजीद बरकत दे। और हम सारे शौक और ज़ौक़ से जब शुरू होता है तो हम बैठ जाते हैं। अल्लाह आपको बरकतें और रहमतें दे। और अब्दुल हबीब भाई, आप मेरे के लिए दुआ करना कि मैं हाफिज़ कुरान बन जाऊं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। अल्लाह आपको हाफिज़ कुरान बनाए, हाफिज़ बाअमल बनाए। नाज़रीन वक्त हुआ है, एक बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट है ज़हनी आजमाइश का, जिसपे हम एक अच्छा शहरी बनने के लिए कुछ सीखते हैं, जिसको सिविक साइंस भी कहा जाता है कि एक अच्छा शहरी बनने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, मुल्क और कौम और अपने साथ रहने वाले मुसलमानों की किस तरह हम अच्छी खिदमत कर सकते हैं। आइए इस बारे में कुछ जानते हैं, क्योंकि सेगमेंट का नाम है अच्छा शहरी। प्रोग्राम है ज़हनी आजमाइश सीजन 12 और सेगमेंट है अच्छा शहरी। आज हमारा मौजू होगा हेडलाइट्स। गाड़ियों और मोटरसाइकिल की तेज हेडलाइट्स खतरनाक हैं। तहकीक के मुताबिक दीज एडवांस्ड नॉन यूजर फ्रेंडली लाइट्स कैन सेट ऑफ एपिलेप्टिक अटैक्स। दे सर्टेनली ट्रिगर मिग्रेन, नाउजिया एंड वर्टिगो। अगर ज्यादा देर इन तेज रोशनियों का एक्सपोजर रहे तो शदीद सर दर्द, सर चकराना और इंतहाई सूरत में दौरे भी पड़ सकते हैं। गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की हेडलाइट्स के हवाले से पूरी दुनिया के ममालिक में कानून मौजूद हैं। कौन से रंग की लाइट्स होनी चाहिए, कितनी रोशनी हो यानी ब्राइटनेस कितनी हो। तकरीबन हर जगह रंग तो दो ही हैं, सफेद या पीला, और इनका मैक्सिमम टेम्परेचर वो 4200 K है। क्योंकि इससे ज्यादा अगर दर्जा हरारत होगा तो लाइट में नीला शेड आ जाता है, ब्लू टिंट, और इस नीली लाइट से यह गलत फहमी हो सकती है कि एम्बुलेंस या कोई और इमरजेंसी व्हीकल है। बहरहाल गाड़ियों में टेल लाइट यानी जो पीछे लाइट होती है और ब्रेक लाइट जो ब्रेक को दबाने से लाइट जलती है, यह भी पीछे होती है, ये रेड होनी चाहिए यानी लाल होनी चाहिए। वैसे भी जब हम नीली और लाल बत्तियां फ्लैश लाइट्स जलते बुझते देखते हैं तो फौरन ये ख्याल आता है कि या ये एम्बुलेंस है या कोई फायर फाइटर गाड़ी है, आग बुझाने वाली गाड़ी है, या कोई पुलिस की गाड़ी है। लाल और नीला ये स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इमरजेंसी का रंग लाल दिन को वाजे नजर आता है और नीला रात को। मजीद वो ड्राइवर्स जो कलर ब्लाइंड होते हैं यानी तमाम रंगों को नहीं देख सकते, वो लाल और नीला इन दोनों के दरमियान आसानी से फर्क कर सकते हैं। बहरहाल ये हमारी अहम तरीन जिम्मेदारी है कि जब इमरजेंसी व्हीकल देखें, कोई एम्बुलेंस फायर फाइटर कार देखें, इट्स नेसेसरी टू पुल ओवर टू द साइड ऑफ रोड, फौरन उस गाड़ी को रास्ता दें। रात के सफर के दौरान ब्राइट लाइट, तेज रोशनी, ये शदीद नुकसान का बायस हो सकती है। बिलखुसूस HID हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लाइट्स, ये तो दुनिया के बहुत से ममालिक के अंदर बैन है। और ये भी याद रखिए आजकल पंजाब में स्मॉग और फॉग, धुंध बहुत ज्यादा है, और ये भी पब्लिक सर्विस मैसेज हमें मिला कि फॉग के दौरान फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। तेज हेडलाइट्स का इस्तेमाल करेंगे तो मंजर और धुंधला हो जाएगा। याद रखिए कानून की पासदारी हम सब की अहम जिम्मेदारी। जी जनाब माशाअल्लाह, अच्छा शहरी सेगमेंट भी हमने सुना। अल्लाह पाक हम सबको हुकूकुल इबाद का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन वक्त हुआ है एक और बड़े प्यारे सेगमेंट का, जिसका नाम है उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। जनाब मुख्तलिफ ज़बानों में इसमें हम मदनी फूल हासिल करते हैं, और आज हमारी प्यारी ज़बान पंजाबी ज़बान में हम इंशाअल्लाह नबी पाक के एक बड़े ही प्यारे खूबसूरत अंदाज का जिक्र करेंगे। तो आइए पंजाबी ज़बान में कुछ मदनी फूल सीखते हैं। प्यारे प्यारे इस्लामी भराओं ते मदनी चैनल वेखन वाले हो, अज में सैगमेंट उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग विच
ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉਹ ਉਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਹ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ ਤਬਈ ਦੇ ਬਾਰੇ में ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुसी साडे नाल मिजाह यानी खुशतबई कर दिओ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्होंने आख्या, मैं पावे तुहाडे नाल मिजाह करदा पर हक गल तो सिवा कुछ नहीं कहंदा। साडे सोहणे ते प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत ही मुस्कुरांदे सी। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमांदे ने, एक बुढ़ी माई सरकार दी बारगाह विच हाजिर हुई ते सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्होंने आख्या, जन्नत विच कोई बुढ़ी माई नहीं जावेगी। ऐ सुन के तो ओ रोण लग पई ते सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आख्या, तो उस दिन बुढ़ी नहीं होएगी, तू उस दिन बुढ़ी नहीं होएगी। हज़रत सैयदना ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमांदे ने, हज़रत सैयदना उम्मे ऐमन रदी अल्लाह तआला अन्हा बारगाह रिसालत विच हाजिर होया ते अर्ज़ कीती कि मेरे खामन तुहानू बुलाउंदे ने। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आख्या, कौन? ओही जिदी अख विच सफेदी है। तो उन्होंने अर्ज की थी, अल्लाह पाक दी कसमें उन्हां दी अख विच कोई सफेदी नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर आख्या, हाँ ओदी अख विच सफेदी है। तो उन्होंने फिर अर्ज की थी कि अल्लाह पाक दी कसमें उन्हां दी अख विच कोई सफेदी नहीं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमांदे ने, कोई भी ऐदा दा नहीं जिदी अख विच सफेदी ना होवे। इस तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुराद ओ सफेदी सी जिन्हें अख दी काली पुतली नू कैरिया होया होवे। सुभान अल्लाह। एक बुढ़ी औरत साडे सोने ते प्यारे आखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच हाजिर हुई तो कहन लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू सवारी वास्ते ऊंट दे दियो, सवारी वास्ते ऊंट दे दियो। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमांदे ने, असी तैनू ऊंट दे बच्चे ते सवार करांगे। उन्हें अर्ज की, मैं ओनू की करांगी, ओ ते मैनू नहीं चुक सकेगा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आख्या, सारे ऊंट दे ही बच्चे ते होंदे ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साडे सोने ते प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश तबई भी फरमांदे ते ओदे विच भी हक ते सच्ची होंदा। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह तआला दे वास्ते ज़बान मुबारक बार कट दे ते ओ खुश होके सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम वल भज के आउंदे। तो हज़रत सैयदना उयैना बिन महसन रदी अल्लाह तआला ने अर्ज की थी, मेरा पुत्र होया, ओदा विआह भी हो गया ते ओदे दाढ़ी भी आ गई, तो पर मैं ओनू कदी नहीं चुमिया। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमांदे ने, जेड़ा रहम नहीं करदा ओदे ते रहम नहीं कीता जांदा। हज़रत सैयदना सुहैब बिन सिनान रदी अल्लाह तआला दे अख दुखनी आई सी ते ओ खजूरा खांदे पे सी। साडे सोहणे ते प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आख्या, तेरी अख दुखनी आई है ते तुसी खजूरा खा रहे हो। तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दूजे पासियों खाना वा, यानी जेड़ी अख नहीं दुखदी मैं उस पासियों खाना वा। तो ऐ सुनिया दी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हां दे इस जवाब तू मुस्कुराए। जिन्हां ने यह रिवायत की थी, वाकया लिखिया, वो कहंदे ने इन्ना मुस्कुराए कि मैंने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिया मुबारक दाना नू वेख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक सानू भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके हक गल कहण दी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए पंजाबी ज़बान में भी अपना मदनी मकसद दोहरा लेते हैं। मैनू अपनी ते सारी दुनिया दे लोकां दी इस्लाह दी कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। ना गीबत करांगे ना गीबत सुनांगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अच्छा, आज पंजाबी नात पढ़नी थी लेकिन माशाल्लाह आज हमारे नात खाने भी पंजाबी नात ही पढ़ दी है, लेकिन काफ़ी दिनों से कॉल आ रही है तो एक दो अशार में वही नात जो आप बार बार कॉल करते हैं। और सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कि मदीने की हाज़री का शौक़ ही हमारी ज़िंदगी का मकसद बन जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी अक्ल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं। मेरी अक्ल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं,
मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर नहीं, पर मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं, आका तेरी मर्जी है साडा ते कोई जोर नहीं, मेरा इश्क ये कहता है हौसला रख, आका दा बुलावा आवेगा, मेरा इश्क ये कहता है हौसला रख, आका दा बुलावा आवेगा, पर की करिए बेसब्री दा, पर की करिए बेसब्री दा, मेरे दिल विचों जांदा चोर नहीं, मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं, आका तेरी मर्जी है साडा ते कोई जोर नहीं। आइए नाजरीन एक बार फिर जरा स्कोर बोर्ड देखते हैं, मुकाबले में फिर वापस आते हैं और अब आखिरी दो सेगमेंट्स हैं जिसमें ये फैसला हो जाएगा कि अगले राउंड में फैसलाबाद या एबटाबाद। जी है ये मकसद मेरा, दूर है 31 नंबर है एबटाबाद, 33 नंबर है फैसलाबाद। माशाल्लाह ज़हनी आजमाइश मुख्तलिफ जगहों पर बड़े शौक और ज़ौक से देखा जाता है। मैं अभी एक पिक्चर वसूल हुई है फैज़ान मदीना में जो माशाल्लाह खादमीन काम करते हैं, उनकी एक रिहाइशगाह भी है, वहाँ भी खादमीन मिलकर ज़हनी आजमाइश देख रहे हैं, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए चले हम उनकी पिक्चर भी शेयर करते हैं कि कहाँ कहाँ किस ज़ौक और शौक से माशाल्लाह ज़हनी आजमाइश लोग देखते हैं। जी आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ खादमीन जो बैठे हैं अपनी रिहाइशगाह पर जमा होकर ज़हनी आजमाइश देख रहे हैं। और दुनिया में बहुत सारे मकामात से हमें खबरें आती हैं कि अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ लोग बाकायदा टाइम निकाल कर ज़हनी आजमाइश को देख रहे होते हैं। अब वक्त हुआ है सेगमेंट का जिसका नाम है फ़र्क तलाश कीजिए। दोनों टीमों से एक एक इस्लाम भाई बोर्ड की तरफ जाएंगे। दो तस्वीरें होंगी। फैज़ान मदीना की एक तस्वीर है जिसमें कुछ फर्क है दोनों तस्वीरों में। 5 फर्क हैं जो तलाश करने हैं और अब देखना यह है कि ये फर्क तलाश कर पाते हैं या नहीं। इनके पास 90 सेकंड्स होंगे और इन 90 सेकंड्स के अंदर इन्होंने फर्क तलाश करना है। दोनों तरफ से एक एक इस्लामी भाई आ जाए, मार्कर हाथ में ले लें। आपका वक्त शुरू होता है अब। नाजरीन आपको भी पिक्चर दिखाई जाएगी स्क्रीन पर, आप भी उसकी तस्वीर ले लीजिए और जरा देखिए कि आप भी फर्क तलाश कर सकते हैं कि नहीं। 5 फर्क हैं, 90 सेकंड्स हैं। जी ये तस्वीर है और ये फैज़ान मदीना जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका की पिक्चर है। रात का मंजर है और फर्क तलाश करना है जनाब। देखना यह है कि फर्क मिलता है कि नहीं। अंधेरे में तो लाइट थोड़ी सी पिक्चर थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन देखना है ये फर्क मिलता है कि नहीं इन्हें। 55 सेकंड रह गए हैं। 55 सेकंड्स। फर्क ढूंढना है, बड़ा गौर से ढूंढ रहे हैं जनाब। जनाब 30 सेकंड रह गए हैं। 5 फर्क ढूंढने हैं तो 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर फर्क कम ढूंढे तो नंबर कम मिलेंगे। शंकियारी वाले भाई बड़ी कोशिश कर रहे हैं,
तस्वीर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जी। दुनिया भर में फैज़ान मदीना हैं, अपने करीबी फैज़ान मदीना में जाया करें, इल्म दीन सीखा करें। 5 सेकंड रह गए जनाब, 3, 2, 1 और वक्त ख़त्म हो गया जनाब। चले, अब आपने कितने फ़र्क तलाश किए हैं ज़रा दीजिएगा मार्कर। पहले तो मदनी चैनल वाले हमें बताएं कि फ़र्क कहाँ कहाँ है, साइड पे हो जाए। हम देखते हैं, हमारी मजलिस बताए कि ये जनाब फ़र्क हैं जी। आपने एक तो ये मीनार का फ़र्क ढूंढा है, एक आपने यहाँ, ठीक है, क्या फ़र्क है यहाँ पर? यहाँ भी है, ये तो यहाँ भी है। अच्छा, ये फ़र्क था बेसिकली, तो आपने ढूंढ लिया। दो फ़र्क ढूंढे हैं और यहाँ दीवार नहीं है, ठीक है ना। 3 फ़र्क ढूंढे आपने जी। और कौन सा फ़र्क है? नहीं, इन्होंने ढूंढा नहीं है ना। एक हो गया, ये 2 हो गया, और ये तो है, और ये 3 हो गया जी। 3 फ़र्क इन्होंने ढूंढे हैं। ज़रा दोबारा बताइएगा, हमारी स्क्रीन पर भी वाकई थोड़ा सा ये मुश्किल पिक्चर है, अंधेरे में ना। अच्छा, ऊपर क्या फ़र्क है ये देखना है, दोबारा दिखाइए। 2, 3, 4 और 5 जी। इस मीनार में रोशनी नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ आते हैं। 1, यहाँ क्या फ़र्क है? यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं है, ये फ़र्क ठीक है। 2 और तो कोई नहीं देखा आपने? अच्छा, ये भी है 3 जी। इन्होंने भी 3 फ़र्क की तलाश किए हैं, तो 1, 2 और 3 जी। 3 फ़र्क इन्होंने भी तलाश किए हैं, तो दोनों टीमों को 3-3 नंबर दिए जाएंगे जनाब। और यहां भी कोई फर्क नहीं आया है। अब 2 नंबर का फर्क है जो एबटाबाद वालों ने खत्म करना है, वरना मुकाबला फैसलाबाद वाले ले जाएंगे, क्योंकि अब आखिरी राउंड है जिसका नाम है नसीब अपना अपना। जी अब जनाब ये लेकर आइए, पर्चियां लेकर आइए जनाब। बारी बारी इस्लामी भाई आएंगे, इनको ग्लव्स भी पहनाए जाएंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और हमने हिफाजत का भी एहतमाम करना है। तो यहाँ से शुरू करें, फैसलाबाद वालों से शुरू करें। फैसलाबाद के इस्लामी भाई जल्दी से दस्ताने पहने आइए, अपनी पर्ची निकालें। सब इस्लामी भाइयों ने एक एक ही पर्ची निकालनी है और उसका जवाब देना है जनाब। जी आइए जनाब। और मेरा नाम जीशान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ और मैं कल प्रोग्राम देख रहा था आपका ज़हनी आज़माइश। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर, ज़बरदस्त। बेस्ट ऑफ लक सर आपके लिए। और अभी भाई मैं आपसे यही कहूँगा कि एक तो आपकी हिम्मत, अल्लाह पाक मज़ीद आपको हिम्मत दे और आपकी हिम्मत की दाद देते हैं सर कि इतना बड़ा लाइव प्रोग्राम लेके चलना। और माशाल्लाह कल तो 3 टीम्स थी और उन तीनों टीमों का कंपटीशन, एक तो इतना टफ कंपटीशन, समझ नहीं आ रहा था कि जीतेगा कौन और किस तरह होगा, कौन हारेगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था कि चैनल स्विच करने का दिल नहीं कर रहा था। सर ये कहना चाहूँगा ज़हनी आज़माइश प्रोग्राम के लिए वन ऑफ द बेस्ट इस्लामिक प्रोग्राम इन द वर्ल्ड ज़हनी आज़माइश, जो कि मदनी चैनल पे ऑन एयर है। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि ज़हनी आज़माइश देखें और अल्लाह पाक मज़ीद मदनी चैनल भी देखें सर, और इसकी बरकतें अता फरमाए हमें भी। और सर अल्लाह पाक आपको मज़ीद हिम्मत दे, मज़ीद हौसला दे कि आप इस तरह के प्रोग्राम्स मदनी चैनल पे करते रहें। अल्लाह पाक आपको बहुत इज्जत दे। बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का, आपकी दुआओं का। नाजरीन आखिरी सेगमेंट है, कलाम बताना है। आइए अपनी जगह पर। अच्छा फैसलाबाद वाले एक भाई वहाँ चले जाएं और एबटाबाद वाले एक भाई यहाँ चले जाएं, सारे इस्लाम में खड़े भी हो जाएं ताकि ये लास्ट राउंड है। किसी को मशवरा करने की इजाज़त नहीं है क्योंकि नसीब सिर्फ अपना है, किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। आइए जनाब अपनी अपनी जगहों पर आ जाएं। अली रज़ा आपसे सवाल, आपने पर्ची निकाली थी कलाम की, तो कलाम आपसे पूछना है, ये बताइए मैं क्यों गैर की ठोकरें खाने जाऊं, इसका दूसरा मिसरा सुनाना है शेर का। नसीब अपना अपना, कोई भी शेर आ सकता है। मैं क्यों गैर की ठोकरें खाने जाऊं, इस शेर को कंप्लीट करना। मैं क्यों गैर की ठोकरें खाने जाऊं, आपका हूं मंगता या रसूल अल्लाह। चले जनाब, कोशिश की कि फौरी तौर पे कोई शेर बना लिया जाए मगर वो नहीं बन सका और गलती हो गई है। यहाँ है कोई शेर को सुनाने वाला? चले देखें जनाब, यहाँ भी हमारे नाजरीन को याद होते हैं, हाजरीन को भी। जनाब मैं क्यों गैर की ठोकरें खाने जाऊं जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं क्यों गैर की ठोकरे खाने जाऊं, तेरे सर से सदके उतारा करूं। चले जनाब जल्दी से इनको मदनी काफिले में रवाना कर दें। अपना सदका उतारे मदनी काफिले में जी सफर जी, बराबर वाले भाई हाथ उठाए तब वो सुनाएंगे या कोई और भाई सुनाएंगे? जी चले। मैं क्यों गैर की ठोकरें खाने जाऊं, तेरे दर से अपना गुजारा करूं मैं। तेरे दर से अपना गुजारा करूं मैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले भाई माशाल्लाह, हिफाजती उमूर वाले भी सही जवाब दे देते हैं। चलें अब बारी है जी एबटाबाद वाले पर्ची निकाले। मौका मिला है मुकाबला बराबर करने का। कैमरे की तरफ रुक करके पर्ची खोलेंगे जी। फिर कलाम आ गया जनाब, आइए। कलाम यह है, इस कलाम का मक्ता सुनाएं। मक्ता आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस लिखता है, बुला लो फिर मुझे ए शाहे बहरो बर मदीने में। इस कलाम का मक्ता सुनाएंगे। बड़ा मशहूर मक्ता है। मदीना इसलिए अत्तार के जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने, के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुकाबला बराबर हो गया नाजरीन। अब बारी है फैसलाबाद वालों की, आइए और पर्ची निकालिए। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। बड़ी देर से लीड थी फैसलाबाद के पास और अब वो लीड खत्म हो चुकी है। अब ये सवाल में देखते हैं क्या बनता है जी। पर्ची खुल रही है नाजरीन, क्या लिखा है इसके अंदर? कैमरा थी, चलें। हर सहाबी नबी, चले जनाब सहाबी रसूल के बारे में सवाल होगा। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी है। बताइए दफीनुल मलाइका किस सहाबी को कहा जाता है? दफीनुल मलाइका। फैसलाबाद वालों की बारी में सवाल मुश्किल आ रहा है। इसी का नाम नसीब अपना है। दफीनुल मलाइका किसे कहा जाता है? किस सहाबी को कहा जाता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। नहीं जनाब, आपसे गलती हो गई है। यहां मौजूद इस्लामी भाई जवाब देंगे। दफीनुल मलाइका। चले मदनी मुन्ने जवाब देंगे। चले रमजान को भी देखिए आता ही नहीं आता। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला। वो गसीलुल मलाइका है। अब अब्बू के साथ मदनी का, हाँ अब्बू के साथ मदनी का। इनके अब्बू तो वैसे ही सफर करते रहते हैं माशाल्लाह। चलें दफीनुल मलाइका कोई बताएंगे? चले बता दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद उमैर हमज़द तारी वाक़ियत से हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला। इनको भी मदनी काफिले में भेज दें जनाब। चलें अब आखिर शहजाद भाई कह रहे हैं, चले इनको भी जगता है मदनी काफिले में जाना है। आमिर बिन फहीरा। हजरत आमिर बिन फहीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यहां गलती हो गई है। अब बारी, मौका मिला है एबटाबाद वालों को आगे बढ़ने का। पर्ची निकालेंगे। जी देखें जनाब ये पर्ची में क्या लिखा है। किताबें, आइए अपनी जगह पर पूछते हैं किताब के बारे में। सही जवाब नाज़रीन ने 2 नंबर से आगे कर देगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कुरान करीम की तफसीर खज़ाइनुल इरफान किसने तहरीर फरमाई है? मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी। मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल है, फैसलाबाद वालों की बारी है। आकर पर्ची निकालेंगे। ये ज़हनी आजमाइश बड़े शहरों की टीमों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जनाब कैमरे की तरफ करके पर्ची खोलेंगे। घर से मैं हूं चला सीखना चले मैं मदद कर देता हूं। चले जी जनाब, जनरल नॉलेज। बताइए पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? पंद्रह सेकेंड है आपके पास। कोई तो परिंदा होगा जो पाकिस्तान का कौमी परिंदा होगा।
किसी परिंदे का तो नाम ले लें जनाब। कबूतर। नहीं जनाब, कबूतर पाकिस्तान का कौमी परिंदा नहीं है, चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। बारी है एबटाबाद वालों की, पर्ची निकालेंगे। मुकाबला बहरहाल एबटाबाद वाले जीत चुके हैं, अगर गलती कर भी गए तो चूंकि 2 नंबर से आगे हैं, लेकिन फिर भी आइए आखिरी सवाल देखते हैं उनके नसीब में क्या है। चले जनाब, जनरल नॉलेज का सवाल इनको भी आ गया है। बताइए, अपनी जगह पर आइए। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आजम कौन सा है? बर्रे आजम एशिया। बर्रे आजम एशिया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अकबर जनाब, एबटाबाद वाले आगे बढ़ गए हैं, फैसलाबाद वाले हिम्मत ना हारे। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। अभी फिर मौका मिलेगा, 3 टीमें जब आएंगी तो आपको चांस होगा कि आप चाहें तो दोबारा हिम्मत करके आगे बढ़ जाएं और उसमें मजीद तैयारी करके आइएगा। दोनों टीमें आगे तशरीफ लाएंगी। अब इंशाल्लाह बताते हैं नाजरीन को, जो ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन में सवाल हुआ था उसमें कौन 5 खुशनसीब हैं कि जिनको जो है वो इनाम दिया गया। जी आ जाए, आगे आ जाए। आगे आ जाए। जनाब, ये 5 आईडीज है, चेक कर लीजिए। क्या मालूम आपका नाम इसमें हो, इन आईडीज नंबर को चेक कर लीजिए और अगर आपका नाम है तो फिर आप इसमें हमसे राब्ता कर लीजिए। स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। जी, दोनों टीमें हिम्मत में रहें। फैसलाबाद वालों को मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि फिर तैयारी करके आइएगा। जीत या हार ये मकसद नहीं तेरा, आगे बढ़ते रहो। शुक्रिया रब तेरा, हार कहती है कि खुद को ऊंचा उड़ा। जीत या हार मकसद नहीं है तेरा, आगे बढ़ते रहो, ये तो थी इब्तिदा। जी, आगे बढ़ते रहें, ये तो थी इब्तिदा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब ये आज का जो फैज़ान अबू हुरैरा जो हमारा माशाल्लाह गिलाफ़े काबा का जो पीस है, ये हम शंकियारी से आए हुए इस्लामी भाई को पेश करते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनकी टीम को और बरकतें अता फरमाए और तरक्कियां अता फरमाए। नाजरीन, आपका एक सवाल शुरू में आपसे किया जाता है, उसकी कुरानदाजी का वक्त हुआ है, आइए वो सुनते हैं। जी, जो सिलसिले के शुरू में सवाल किया गया था वो सवाल ये था कि हज़रत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल किस तारीख को हुआ? तो दुरुस्त जवाब है 7 जमादिल ऊला। माहनामा फैज़ान मदीना जमादिल ऊला 1442 सन हिजरी के अंदर ये जवाब मौजूद था। जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिए चंद के नाम ये हैं: बिनते अब्दुल लतीफ़ चिश्तियाँ, बिनते अय्याज अत्तारिया संबड़ियाल, बिनते मोहम्मद अहमद अत्तारिया रहीम यार खान, बिनते गुलाम फरीद गंगापुर, बिलाल कमर आरिफ वाला, अता सुबहानी लाहौर, मोहम्मद ओन मेलसी, मोहम्मद तलाल मुल्तान शरीफ, मोहम्मद उनैस अत्तारी बहावलपुर, मोहम्मद मुनीर चीचावतनी, इदरीस अहमद मियाँ वाली, अब्दुल वहीद मीरपुर माथलियो, गुलशाहिद फतेहजंग, खालिद कादरी, बिनते नदीम अत्तारी खैरपुर, उस्मान अत्तारी डस्का, बिनते मोहम्मद शेर खुशाब, बिनते तारिक हुसैन सखर, मोहम्मद खालिद शाह हरीपुर। जिनका आज कुरानदाजी में नाम निकला है बिनते नदीम अत्तारी खैरपुर। चलें, खैरपुर वाले अपने एड्रेस भेज दें अपने महरम के जरिए, तो हम इंशाल्लाह आप तक तोहफा पहुंचाएंगे। अच्छा, नीचे भी कुरानदाजी होगी और यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में भी कुरानदाजी होगी। आइए पहले यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों का टोकन नंबर। आज हाजरीन में से जो ऊपर मौजूद हैं 152 152 152। शहबाज भाई नीचे भी टोकन निकाल लें। 261 नंबर 261 नंबर के इस्लाम भाई तशरीफ लाएं और वो भी अपना तोहफा ले लें। माशाल्लाह इस्लाम भी। चलें जनाब, नाज़रीन आपसे एक सवाल करके जाएंगे जिसका जवाब कल आपने देना है, मगर कल मुकाबला किसका किसके साथ है, आइए देखते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, ज़हनी आजमाइश सीजन 12 के मुकाबलों में आप मुलाहजा कर सकेंगे 22 दिसंबर 2020 बरोज मंगल रात 8:30 बजे बराह रास्त चिश्तियाँ और वाह कैंट की टीमों के दरमियान मुकाबला। वो कौन सी 3 चीजें जिनके सबब कोई शख्स बुलंदी दर्जात तक नहीं पहुंच सकता? अपनी अटकल से गैब की खबरें बताना,
اور فعال کی تیر نکالنا اور بادشگونی کی وجہ سے کسی سفر سے روک جانا. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر کے پتر کو خبر نہ. بروز قیامت دیدار الہی سب سے پہلے کس کو؟ بروز قیامت دیدار الہی اللہ عز و جل کے آخری اور ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہوگا. کیا علم کی بھی کوئی آفت ہے؟ جی، علم کی آفت تکبر ہے. تو دیکھتے رہیے ذہنی آزمائش سیزن 12. دیکھنا یہ ہے کہ پہلی بار ذہنی آزمائش میں چشتیاں کی ٹیم آ رہی ہے، کتنی تیاریاں کر کے آ رہی ہے وہ کل معلوم ہو جائے گا. اب وقت ہوا ہے آپ سے ایک سوال کرنے کا جو آپ نے فوراً SMS کرنا ہے. کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے آپ کا جواب ہم چلائیں گے. ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام مبارک کیا ہے؟ امہات المومنین یہ کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، وہاں سے آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا. آپ نے سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک ہمیں میسج کرنا ہے. وقت ہوا ہے، ادب و شوق کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیے. جی. تاج دار حرم شہنشاہ دی، تاج دار حرم شہنشاہ دی، تم پہ ہے دو کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہے دو کروڑوں درود و سلام، ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین، تم پہ ہے دو کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہے دو کروڑوں درود و سلام. اب مدینہ ہمیں بلا لیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے. اب مدینے ہمیں بلا دیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے. از پہ غوث اعظم امام مبین، از پہ غوث اعظم امام مبین، تم پہ ہے دو کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہے دو کروڑوں درود و سلام. اب بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتا ہے طیبہ کی دیدار کو. اب بلا لو مدینے میں سگے عطار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کی دیدار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں
نہیں آقا کوئی اس کے سوا، آقا کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ۔ علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا، سیکھنا علم دین ہے یہ مقصد میرا، دور ہے منزلیں راستہ ہے بڑا، پر کمر باندھ لی تو مدد